یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی باز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 25 ستمبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حقیقت، سنہری متن، کرنتھیوں۔ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جوابی مطالعہ۔ کرنتھیوں۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کے روح کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ درسی باز بائبل میں سے یعقوب۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ متی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ متی۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ متی۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا: اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے،
اور नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वह जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने इत्क़ाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। मत्ती। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लूका। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मत्ती। फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कूड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त देना। रोमियो। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। आसमान, हम-आहंगी, रूह की सल्तनत, इलाही असूल की हुकूमत, रूहानियत, राहत, रूह का माहौल। आसमान कोई जगह नहीं, अक्ल की इलाही हालत है, जिसमें अक्ल के तमाम तर ज़हूर हम-आहंग और फ़ानी होते हैं, क्योंकि वहाँ गुनाह नहीं है और इंसान वहाँ खुद की रास्तबाजी के साथ नहीं, खुदावंद की सोच की मलकियत में पाया जाता है, जैसा कि कलाम ये कहता है। आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता हम-आहंगी है और मसीह इलाही साइंस में हमें ये रास्ता दिखाता है। इसका मतलब खुदा, अच्छाई और उसके अक्स के अलावा किसी और हकीकत को ना जानना, जिंदगी के किसी और ज़मीर को ना जानना है और नाम नहाद दर्द और खुशी के एहसासात से बरतर होना है। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तस्वुर करने की इब्तदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, यकसानियत में जुड़ जाते हैं और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खुसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं,
कोई जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। जैसा कि रूहानी समझ पर जाहिर हुआ है, इलाही मबादुल तिबियत वाज़ह तौर पर दिखाता है कि सब कुछ अक्ल ही है, और ये अक्ल खुदा कादिर मुतलिक हमाजाई अलामुल ग़ुयूब है, यानी कि सभी ताकत वाला, हर जगह मौजूद और सभी साइंस पर कादिर है। लिहाजा हकीकत में सभी कुछ अक्ल का इजहार है। चूंकि खुदा ही सब कुछ है तो उसके अदम एहतमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं। खुदा रूह ने सब कुछ तन्हा ही खल्क किया और उसे अच्छा कहा, इसलिए बदी अच्छाई की मुखालफ होते हुए गैर हकीकी है और खुदा की तख्लीक करदा नहीं हो सकती। अगर हकीकत खुदा इलाही असूल के साथ मुकम्मल हमआहंगी में है तो शक करना बेवकूफ़ी होगा। अगर साइंस जब समझी जाए और जाहिर की जाए सारी मुखालफत को नेस्त करती है, चूँकि आप कबूल कर लेते हैं कि खुदा कादिर मुतल्लिक है, क्योंकि इस बुनियाद पर यह बात सामने आती है कि अच्छाई और इसकी शीरी मुखालफतों में तमाम कुदरत पाई जाती है। खुदा का हकीकी तस्वुर ज़िंदगी और मोहब्बत की हकीकी समझ अता करता है, फतह की खबर चुरा लेता है, तमाम गुनाहों और इस फरेब नज़री को दूर कर देता है कि यहाँ और अक्लें भी मौजूद हैं, और ये फ़ानियत को नेस्त करता है। क्रिश्चियन साइंस के असरात इस कदर देखे नहीं जाते जितने के ये महसूस किए जाते हैं। ये सच्चाई की दबी हुई हल्की आवाज़ है जो खुद से मुखातिब है। या तो हम इस आवाज़ से दूर भाग रहे हैं या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। एक छोटे बच्चे की मानद बनने की ख्वाहिश और नई सोच के लिए पुरानी को तर्क करना उस दानिश को जन्म देता है जो जदीद नज़रिए को कबूल करने वाली हो। गलत निशानियों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होते देखने की शादमानी, ये तरगीब मुकम्मल हमआहंगी को तेज़ी से अमल में लाने में मदद देती है। समझ और ख़ुद की पाकीज़गी तरक्की का सबूत है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मादे की फ़र्जी ज़िंदगी पर अक़ीदे के तेज़ तरीन तजर्बात, इसके अलावा हमारी मायूसियाँ और ना ख़त्म होने वाली परेशानियाँ हमें इलाही मोहब्बत की बाहों में थके हुए बच्चों की मानद पहुँचाते हैं। फिर हम इलाही साइंस में ज़िंदगी को सीखना शुरू करते हैं। रिहाई के इस अमल के बगैर क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? किसी शख्स का खुद को गलती से बचाने की निस्बत सच्चाई की ख्वाहिश रखना ज़्यादा आसान है। बशर क्रिश्चियन साइंस के फ़हम की तलाश कर सकते हैं, मगर वो क्रिश्चियन साइंस में से हस्ती के हक़ाइक़ को जद्दोजहद के बगैर चुनने के काबिल नहीं होंगे। ये इख्तलाफ हर किस्म की गलती को तर्क करने और अच्छाई के अलावा कोई दूसरा शऊर ना रखने की कोशिश करने पर मुश्तमिल है। जिस्मानी हवास का सबूत अक्सर औक़ात हस्ती की हकीकी साइंस को तब्दील कर देता है और यूं गुनाह, बीमारी और मौत को ज़ाहिरी क़ुव्वत अता करते हुए मुखालफत की सल्तनत कायम करता है। लेकिन बेहतर समझा जाए तो ज़िंदगी के बड़े हक़ाइक़ गलतियों की इस तकोन को शिकस्त देते हैं, इसकी झूठी गवाही की मुखालफत करते और आसमान की बादशाही को ज़ाहिर करते हैं, जो ज़मीन पर हमआहंगी की असल सल्तनत है। एक मुजस्समा साज अपने तस्वुर को कामिल बनाने के लिए पत्थर को अपने नमूने में ढालता है। हम सब मुजस्समा साज हैं जो मुख्तलिफ अशकाल में काम करते हैं, ख्यालात को ढालते और तराशते हैं। फ़ानी अक्ल के सामने नमूना क्या है? क्या ये गैर कामलियत, खुशी, दुख, गुनाह, तकलीफ़ है? क्या आपने फ़ानी नमूने को कबूल कर लिया है? क्या आप इसे दोबारा जन्म दे रहे हैं? तो आप शैतानी बुत परस्ती और नफ़रत अंगेज़ सूरतों के वसीला आसिफ ज़दा किए जा रहे हैं। क्या आप गैर कामिल नमूने की सारी मखलूक से नहीं सुनते? दुनिया इसे पकड़े हुए है, इससे कबल कि आप मुसलसल इसको देखें। नतीजा ये है कि आप इन निचले तरीक़ा हाय कार की पैरवी करने, अपनी ज़िंदगी के कामों को महदूद करने और अपने तजर्बे में मादे के नमूनों के गोशादार खाके और बदनुमाई को कबूल करने के काबिल हैं। इसका इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले दुरुस्त सिमत में देखना चाहिए और फिर इस जानब चलना चाहिए। हमें ख़यालात में कामिल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम इन्हें कभी अजीम और शरीफाना ज़िंदगियों में नक्श नहीं कर सकते। हमारे अंदर बेगर्जी, अच्छाई, रहम, अदल, सेहत, पाकीज़गी, मोहब्बत आसमान की बादशाही को सल्तनत करने दें और गुनाह, बीमारी और मौत तल्फ होने तक कम होते जाएंगे।
आइए साइंस को कबूल करें, अक्ली गवाही पर मुश्तमिल तमाम नज़रियात को तर्क करें, नाकस नमूनों और पुरफरेब क़यास आराइयों से दस्तबरदार हों, और आइए हम एक खुदा, एक अक्ल और उस वाहिद कामल को रखें जो फजीलत के अपने नमूनों को पैदा कर रहा है। जैसे रोम की गैर अक़वाम ने देवता से मुतल्लिक़ रूहानी तसव्वुर को ज़्यादा तस्लीम किया, वैसे ही हमारे मादी नज़रियात रूहानी ख़यालात को कबूल करेंगे, जब तक कि मुतनाही लामुतनाही को, बीमारी सेहत को, गुनाह पाकीज़गी को जगह फराहम नहीं करता, और खुदा की बादशाही जैसी आसमान पर है वैसी ही ज़मीन पर भी नहीं आ जाती। तब हमारी ज़ियारत के अयाम ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएंगे जब खुदा की बादशाही ज़मीन पर आती है, क्योंकि हकीकी राह मौत की बजाय ज़िंदगी की जानब ले जाती है, और ज़मीनी तजर्बा गलती की महदूदियत और सच्चाई की उन महदूद खसूसियात को ज़ाहिर करता है जिनमें खुदा इंसान को सारी ज़मीन पर इख्तियार अता करता है। बर्दाश्त करने वाले अजीज़ों, हौसला करें, क्योंकि हस्ती की ये हकीकत यकीनन कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में सामने आएगी। कोई दर्द नहीं होगा और सब आंसू पूंछ दिए जाएंगे। जब आप ये पढ़ें तो यस्सु के इन अल्फाज को याद रखें, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, इसलिए ये रूहानी शाऊर एक मौजूदा अमकान है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो, और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम साब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीन साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे, और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।